پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں خاص نظر۔ نئے سال سے تمام سفید راشن کارڈ ہولڈرز کو باریک چاول سربراہ کیا جائے گا۔ وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی کا اعلان۔ راشن چاول کی دیگر اغراض کے لیے منتقلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ راشن شاپ ڈیلرز کو دیا انتباہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دیگر وزراء کے ساتھ دہلی میں ہائی کمان سے ملاقاتیں۔ ریاست کے ترقی و مستقبل کے پلانز پر اہم مذاکرات۔ گورنر کے ذریعے غیر بی جے پی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کی سازش۔ سی پی آئی قائد ڈاکٹر نارائنا کا مودی حکومت پر الزام۔ خواتین کے مظالم میں اضافے پر بھی ظاہر کی تشویش۔ ہیڈرا کی کارروائیوں میں دن بدن تیزی۔ اداکار ناگرجنا کی غیر قانونی ملکیت بھی کر دی گئی منہدم۔ کہا تالابوں کنٹوں کے قریب غیر قانونی عمارتوں کو نہیں کیا جائے گا برداشت۔ حیدرآباد کمشنر پولیس کے سنواس ریڈی کی گنیش منڈپوں کے نمائندوں کے ساتھ اہم میٹنگ۔ قیام امن و حادثات سے بچاؤ کے لیے کیے سوالات۔ وقف ترمیمی بل بی جے پی کی سازش۔ قوم و ملت کو متحد ہو کر سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ علماء، مشائخین و دانشوران کا کانفرنس سے خطاب۔ مدھیہ پردیش کے چھترپور میں حاجی شہزاد علی کی حویلی کو بلڈوزر سے گرائے جانے پر عوام میں بے چینی۔ کانگریس نے کہا ملزم کے گھر پر بلڈوزر چلانا انصاف نہیں، بربریت ہے۔ اور جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد پر بی جے پی برہم۔ کہا کیا کانگریس سرحد پار سے دہشت گردی کی کرے گی حمایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شروعات کرتے ہیں بڑی اہم خبر سے، جیسے کہ وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ نئے سال سے تمام سفید راشن کارڈ ہولڈرز کو باریک چاول سربراہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاستی سطح کی وجیلنس کمیٹی کے اجلاس میں یہ انکشاف کیا اور کہا کانگریس پارٹی میں راشن کارڈ ہولڈرز کو فائن رائس کی سربراہی کا انتخابی منشور میں وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا عوام کو بہتر معیار کا فائن رائس سربراہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رعایتی شرح پر گیہوں سربراہ کرنے کی بھی تجویز ہے۔ انہوں نے راشن ڈیلرز کو چاول کی غیر قانونی منتقلی اور فروخت کے خلاف بھی سخت کارروائی کا انتباہ دیا اور کہا راشن چاول کی دیگر اغراض کے لیے منتقلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ورنہ راشن شاپس کی ڈیلرشپ منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنا دورہ دہلی مکمل کر کے حیدرآباد واپس آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں ہائی کمان امور پر بات چیت سے ریاست کے زیر التوا مسائل پر بات کی۔ ہائی کمان کی طلبی پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور دیگر قائدین نئی دہلی پہنچے تھے۔ چیف منسٹر اور دیگر قائدین نے آج راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے راہل گاندھی کو دراصل کسانوں کے قرض معافی اسکیم کی تکمیل کے سلسلے میں ورنگل کے مجوزہ جلسے اظہار تشکر میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے سیکریٹریٹ کے روبرو آن جہانی راجیو گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے سونیا گاندھی کو مدعو کرنے کے پروگرام سے بھی واقف کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریونت ریڈی نے مجالی سے مقامی کے انتخابات کے پیش نظر پردیش کانگریس کی صدارت پر نئے قائد کے انتخاب کی سفارش کی تاکہ وہ حکومت کی کارکردگی پر مزید مکمل دھیان دے سکیں۔ سی پی آئی کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت نے سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ کو تبدیل کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ بعمل آوری شروع کر دی ہے۔ ہرمکنڈا میں سی پی آئی کی ریاستی کونسل کے سروزہ اجلاس کے دوسرے دن ڈاکٹر نارائنا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی اور کہا گزشتہ 10 سالوں میں مودی حکومت کے تمام نعرے محض کاغذی ثابت ہوئے ہیں اور بی جے پی نے جملہ بازی کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ انہوں نے کہا خواتین کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ملک میں خواتین کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگایا گیا لیکن در حقیقت مودی حکومت صرف اپنے قریبی صنعتی گھرانوں کے مفادات کا ہی تحفظ کر رہی ہے۔
BRS قائد و سابق ریاستی وزیر KTR نے BIS ورکرز اور خواتین پر کانگریس خواتین ورکرز کے حملوں کو تشویشناک قرار دیا۔ ویمنز کمیشن میں KTR نے BIS خواتین وفد کے ہمراہ شکایت درج کروائی اور کہا کہ جو خواتین BIS خواتین پر حملہ کر رہی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر نے گنیش فیسٹیول کی آمد کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا۔ گنیش منڈپوں کے نمائندوں کے ساتھ کمشنر پولیس کے سنیواس ریڈی نے بات چیت کی اور قیام امن کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گنیش چتورتھی سے لے کر وسرجن تک کے تمام انتظامات اور ہائی کورٹ کے احکام پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کمشنر پولیس نے گنیش منڈپوں کے ذمہ داران سے وعدہ بھی لیا۔ کسی بھی قسم کے حادثات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر بھی انہوں نے رپورٹ طلب کی۔ آل انڈیا مائنورٹیز فیڈریشن اور آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے آج ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ شاہی مسجد باغ اعمہ میں وقف ترمیمی بل پر غور و خوض کے لیے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دانشوران قوم نے مانا کہ ایک منظم سازش کے تحت BJP اور RSS ملک کی کروڑا روپے مالیاتی انتہائی قیمتی املاک پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان املاک کو ہڑپ کرنے کی خوفناک سازش کے تحت وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں منظور کروانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر علماء و مشائقین نے زور دے کر کہا RSS اور BJP کی ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے قوم کو پوری طاقت کے ساتھ متحد ہو کر آگے آنا ہوگا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اوقافی بورڈ کی ذمہ داریوں اور اوقافی جائیدادوں کی صورتحال سے واقف کروایا اور وقف ترمیمی بل کے ذریعے کسی قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بھی انہوں نے واقف کروایا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ملک میں وقف بورڈز اوقافی جائیدادوں کی جس طرح سے حفاظت کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں، تاہم کہا اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اوقافی جائیدادیں بورڈ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ دیگر علماء نے بھی کہا دفاع اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ جائیدادیں وقف بورڈ کے پاس ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری قوم کے ہر فرد کے پاس ہوتی ہے۔ پچھلے 10 سال سے NDA کی حکومت جو کہ بھول گئے مودی حکومت بولتے تو BJP نے بھی مودی ختم کر دیا، تو مودی کو BJP ختم کر کے مودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی شہریت کے نام پہ NRC وغیرہ لے کے آئے کہ مسلمانوں کو پہلے شہریت کے نام پہ ہراس کرے، ان کو پریشان کرے، اس کے بعد پولیٹیکلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد سوشلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد مذہبی آزادی کے اوپر وہ لوگ وار کرنے کی کوشش کرے۔ اب ان کو مسلمانوں کی جائیدادوں کے اوپر بلڈوزر چلانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ مودی سرکار بلڈوزر کی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امینڈمنٹ 40 جو پوائنٹس لے کے آئے ہیں، قابل غور بات یہ ہے کہ آج اس کی کیا ضرورت ہے۔ ملک بے روزگاری سے جوجھ رہا ہے، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ملک کا نوجوان روزگار اور تعلیم کو پوچھ رہا ہے۔ جو حکومت سے ملیں گے تو ان کے لیے زندگی گزارنے میں کتنی سہولت ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو مجھے فون آتا ہے کہ دواخانے کا علاج ہے، دواخانے کے لیے وہاں پر دوا اور بڑی ستم دریدی کی بات ہے کہ رمضان میں جو پورے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمارے احباب بہت غریب کے پاس محمد راشد بنا سمجھا۔ تو خیر یہ بات ہے، آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ ہم آپ پر ناز کرتے ہیں اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ برابر آپ آتے ہیں، آپ کے برائے میں گالیاں بھی سنتا ہوں آتا ہوں، ہم مجھے بھی مطلب نہیں ہے گالیاں دینے کے، ہم تھوڑے افراد سخت بول لیتے ہیں کیونکہ آپ پر ہم ناز کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ سے آپ کی ہمارے آپ کی سرپرست سے برابر جاری رہیں گی اور یہ 10,000 روپئے کی بھی آپ کو کے لیے اور ان شاء اللہ کا ہماری میٹنگ ہے دیکھیں ہم تینوں چاروں نہیں ہیں، دوسری یونائٹیڈ فیڈریشن باقاعدہ کمیٹی ہے رجسٹرڈ ہے، ہم اس کے ساتھ کل بیٹھیں گے، آپ کی یہ بات کرنا میٹنگ میں رکھیں گے اور ان شاء اللہ
25 अगस्त को मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तकरीबात मनाने का ऐलान किया। ताहम अब कुछ तब्दीलियों के साथ इन तकरीबात का आगाज़ किया जाएगा। इसी सिलसिले में खुसूसी प्रेस मीट से मुखातिब करते हुए सैयद निज़ामुद्दीन, समीर वलीउल्लाह, मतीन शरीफ व दूसरों ने खिताब किया और तमाम तर तफसीलात बतलाएँ। 25 अगस्त 2024 को मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मिल होने पर जो हमने सेलिब्रेशन का ऐलान किया था, उसी प्लानिंग के तहत कल से जितने मुसलमानों को इस सोशल मीडिया के ज़रिए रिज़र्वेशन के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के वीडियोस, उनके सक्सेस स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम आवाम तक लाना शुरू करेंगे। इसके साथ पिछले प्रेस मीट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और लोगों से अपील की थी कि जिन जिन लोगों को मुस्लिम रिज़र्वेशन से फ़ायदा हुआ है, वो तमाम लोग अपने 2 मिनट अपने तफसीलात 2 मिनट का वीडियो बनाकर और अपने सक्सेस स्टोरीज़ के डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो काफ़ी लोगों के कॉल्स मुझे वसूल हुए, ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ से और गल्फ़ कंट्रीज़ से कई कॉल्स वसूल हुए, जिसमें से एक न्यूयॉर्क से हुडसन वैली कुछ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली साहब ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके वालिद हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर थे। एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के नाते डॉक्टर बनना सिर्फ़ एक ख्वाब था उनका, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। मगर इस मुस्लिम रिज़र्वेशन से उनको डॉक्टर में फ्री सीट आई, जिसके बाद वो डॉक्टर बने और आज वो अमेरिका के हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनका कहना था कि उनकी एनुअल सैलरी $1,32,000 US नियर बता रहे थे। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मूविंग इमेजेस फिल्म क्लब की 20वीं सालगिरह तकारीब मनाई जा रही हैं। इसी मौके पर 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल तकारीब का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसका आगाज़ अमल में आया। पेश नाज़रीन मज़ीद तफसीलात इस खुसूस रिपोर्ट में। हमारे शहर हैदराबाद फरखंदा बुनियाद में फिल्मी शायकीन की कोई कमी नहीं है। 7 अदाकाराओं के चाहने वाले क्लब्स भी काम कर रहे हैं, जबकि फिल्मी क्लब्स की सरगर्मियां भी आपको नज़र आएंगी। और इन तमाम में साल 2004 में कायम करदा मूविंग इमेजेस फिल्म क्लब की अपनी एक मुनफरिद पहचान और शिनाख्त है। इस क्लब के बेशुमार अरकान हैं जो साफ़ सुथरी, ख़ासकर माशरे को एक मुस्बत पैगाम देने वाली फ़िल्मों की बाज़ाब्ता अपने अरकान के लिए हर माह कम अज़ कम 2 मरतबा नुमाइश का एहतमाम करते हैं। और हम आपको बता दें कि हैदराबाद के इस मूविंग इमेजेस का 20 साल कबल मशहूर नगमा निगार गुलजार साहिब के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था। और इस क्लब की 20वीं सालगिरह के मौके पर अब 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर एक मराठी फिल्म बाईपन भारी देवा की नुमाइश की गई, जिसमें मशहूर व मारूफ अदाकारा वंदना गुप्ता और सुकन्या कुलकर्णी ने ऐसी अदाकारी के जौहर दिखाए। इस फेस्टिवल के आगाज़ के मौके पर वंदना गुप्ता और कुलकर्णी भी मौजूद थे, जबकि बॉलीवुड के मशहूर मारूफ डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफी मिस्टर असीम मिश्रा भी मौजूद थे। इन तीनों को तहनीत भी पेश की गई और इस मौके पर फिल्म, ड्रामा और थिएटर से जुड़ी अहम शख्सियात मौजूद थीं।
मूविंग इमेजेस फिल्म क्लब की वर्किंग प्रेसिडेंट मोहतरमा संगामित्रा मलिक ने जो मुख्तलिफ ज़बानों में हैदराबाद और हैदराबादी तहज़ीब पर बेशुमार नग़मे लिख चुकी हैं और उन्हें अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, मेहमानों से खिताब करते हुए इस फिल्म क्लब की सरगर्मियों को नग़मे की शक्ल में पेश किया और बताया कि क्लब अरकान को हिंदुस्तानी, हिंदी, अंग्रेज़ी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़िल्में दिखाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि जायश रंजन IAS इस क्लब के सदर हैं। वो अपनी मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। इब्तिदा में मोहतरमा सुचित्रा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि वंदना गुप्ता और कुलकर्णी के साथ साथ असीम मिश्रा ने भी खिताब किया और अपने फिल्मी सफ़र और कामयाबियों के बारे में बताया। वंदना गुप्ता ने तकरीबन 13,000 शोज़ किए हैं, जबकि असीम मिश्रा कई फिल्मों बशमूल बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफी रह चुके हैं। आज भी एक और हिंदी फिल्म अफवाह की नुमाइश की गई और इसके डायरेक्टर सुधीर मिश्रा मौजूद थे। पीर 3 बजे तमिल फिल्म कन्नम दिखाई जाएगी। डायरेक्टर श्री कार्तिक भी मौजूद रहेंगे। सवाल और जवाब का भी सेशन होगा। आखिरी दिन इतवार 25 अगस्त को पान सिंह तोमर फिल्म के शोहरत याफ्ता असीम मिश्रा से बातचीत का प्रोग्राम मुकर्रर है। दोपहर 12 बजे कड़वी हवा नामी फिल्म की भी नुमाइश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे हैदराबाद में। और हर पे आप जैसा कि हमने बताया हमारे ऑडियंस को कि आप डायरेक्टर फोटोग्राफी है, तो आप क्या समझते हैं कि आज जो हमारे पास फिल्में बन रही हैं उसमें किस तरह की फोटोग्राफी होनी चाहिए या हो रही है? आई थिंक मेरे ख्याल से फोटोग्राफी बहुत अच्छा हो गया होता है। मतलब मैंने खुद अपने आप को देखा है कि जैसे मैंने फिल्में की पान सिंह तोमर या बजरंगी भाईजान, हिटलर थ्री, गुंडे, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत सारी फिल्में की। तो एक स्लो ग्रोथ हुआ है, बट अब जो टेक्नोलॉजी जिस तरह की फिल्म शूट कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से मलाबार गोल्ड की जानिब से ब्राइडल ज्वेलरी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मलाबार ने दुल्हनों के लिए जदीद फैशन की ज्वेलरी मुतारिफ करवाई है। मलाबार ने कहा कि शादी के सीज़न के पेश नज़र दुल्हनों के लिए जदीद फैशन की नित नई ज्वेलरी मुतारिफ करवाई जा रही है। मलाबार गोल्ड के तमाम शोरूम्स पर दुल्हनों के लिए ये जदीद जेवरात दस्तियाब रहेंगे। और इन दिनों एक खबर मीडिया और सोशल मीडिया और अखबारों पर गश्त कर रही है कि शहदाबाद के बच्चों के नीलूफर हस्पताल में बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। अमला और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद सहूलियात की कमी से मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अस्पताल ने इन शिकायत को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मन घड़त कहानी बनाकर सिर्फ वायरल किया जा रहा है, जबकि यहाँ बच्चों को सहूलियात मौजूद हैं और यहाँ हम वक्त बच्चे अपने इलाज के लिए आ सकते हैं। डॉक्टर रवि कुमार बात कर रहा हूँ। अपना हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल से कभी कभी थोड़ा लोड ज़्यादा आते, पेशेंट्स ज़्यादा आते, सब लोग को ट्रीटमेंट देते, सो थोड़ा एडमिट करते ना। एक्चुअली हमारे पास 1500 पेशेंट्स ओपी आता एक एक दिन। कभी कल फॉर एग्जांपल 2000 पेशेंट्स आउट पेशेंट आया। सो इसमें 200 पेशेंट्स को हम एडमिट करें, 200 पेशेंट्स को एडमिट करें। सो बेड देने के पहले वो ट्रायल्स बोलते, उधर कमरे में बैठे वो लोग का फ़ोटोज़ निकाले। 2 घंटे के बाद किसी का इमरजेंसी में डालना, उसको ट्रीटमेंट दे देते, किसी को वार्ड में डालना, उसको वार्ड चले जाता, वार्ड में बेड मिल जाता। सो किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट करते, उधर उधर बेड्स मिल जाता। सो बेड्स कम है बोल के इधर कुछ भी नहीं है। और 100-200 एक्स्ट्रा आए तो भी हमारे पास बेड्स है, हमारे पास डॉक्टर्स है, दवा है। सो कुछ डरने की बात ही नहीं है। हाँ, अभी सीज़न क्या है, कभी कभी वायरस बोलते, ये बारिश आने के बाद कभी कभी वायरस को अपॉर्चुनिटी मिल जाता, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोनिमोनिया आ जाता, मच्छर से डेंगू फीवर आ जाता, एंड अभी जी काया पायखाना भी ज़्यादा केसेस है। सो ये पूरा प्रिवेंटेबल है।
ये पेरेंट्स का हाथ में है। मच्छर नहीं काटना बोले तो देख लो क्या कैसा करना, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे देना, सेफ खाना दे देना। सो रेस्पिरेटरी तो कभी कभी नाइट टाइम उतना ही कर सकते आप लोग, नाइट टाइम ब्रश करके थोड़ा नाक और मुंह साफ़ कर लिया तो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा प्रिवेंटेबल है। सो अननेसरली टाइम वेस्ट नहीं होता, बुखार आए तो एडमिट होना उसका ज़रूरत नहीं रहता। फिर भी नीलोफर हॉस्पिटल में हम अननेसरी एडमिट नहीं करते, इमरजेंसी आई तो एडमिट करते। सो किसी को तकलीफ़ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल 24 आवर्स अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर एमरजेंसीज, मॉर्निंग 9 to 2 बजे तक आउट पेशेंट यूटिलाइज कर सकते। हैदरा के अमले ने माधापुर में वाक़े तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के इन कन्वेंशन को मुनद्दिम कर दिया। हुकाम ने आज सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान कन्वेंशन की मिसमारी की। हाल ही में हैदरा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के इन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मिली थी और कहा गया था कि तोम कुंटा में एक तालाब की 3 अकाजी पर कन्वेंशन बनाया गया था। वाज़ेह है कि हैदरा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करके उन्हें फौरी मिस्मार किया जा रहा है। और सिकंदराबाद पर वाक़े मशहूर पैराडाइज होटल पर आतिशबाजी का सानहा पेश आया, जिससे होटल स्टाफ और कस्टमर्स में खौफ की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक जैसे ही होटल में आग भड़क उठी, होटल में बैठे तमाम सारिफीन खौफ व वहशत के आलम में होटल के बाहर दौड़ने लगे। फायर फाइटर्स ने काफ़ी जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी का मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी। मुंबई से हैदराबाद आने वाला खानगी हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पोटगांव में गिरकर तबाह हो गया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि 4 मुसाफिर इस हादसे में बाल बाल बच गए, ताहम उन्हें चोटें जरूर पहुंची। पंकज देशमुख सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर खानगी एविएशन कंपनी का था। ये मुंबई से हैदराबाद आ रहा था। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सफर कर रहे थे। पंकज ने बताया कि इस हादसे में मामूली चोटें आई। हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर तशद्दुद के मुबैना मरकजी मुलजिम हाजी शहजाद अली का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव से इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। हाजी शहजाद अली के मुताबिक गिरिराज महंत ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। अंजुमन सदर कमेटी, उलमा कमेटी और अवाम काबिल एतराज़ बयान के खिलाफ एहतजाजन मेमोरेंडम देने गए थे। लोग पुलिस से गिरिराज महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा, वाक़े के पीछे साजिश को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हुजूम की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज के बाद समाज दुश्मन आसिफ की जानिब से पथराव किया गया और इस वाक़े के बाद हाजी शहजाद अली के मकान को बिल्डोजर से गिराए जाने को उन्होंने गैर कानूनी और अदालती निज़ाम के लिए भी चैलेंज करार दिया। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, जुर्म के बदले बिल्डोजर चलाकर खानदान को बेघर करना सरासर नाइंसाफी और बर्बरियत करार देते हुए कहा, ये एक गैर इंसानी अमल है जिसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, किसी मुजरिम को सजा देने के लिए उसके घर पर बिल्डोजर चलाना इंसाफ नहीं कहला जा सकता और किसी भी महज़िब माशरे में मुजरिम के खानदान का घर बिल्डोजर से तोड़कर जुर्म की सजा हरगिज नहीं दी जा सकती। ये इंसाफ नहीं बल्कि सरासर नाइंसाफी है और कानून की सरी खिलाफ वर्जी है, इसीलिए इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, किसी के घर को गिराना और फिर इसके खानदान को बेघर करना गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में अक़लियतों को बार बार निशाया जाना परेशान कुन है। कानून के माशरे में ऐसी हरकतें काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत करते हुए इसे एक गैर इंसानी अमल करार दिया और कहा, कांग्रेस इसे आइन की संगीन खिलाफ वर्जी और शहरियों में खौफ पैदा करने की हिकमत अमली समझती है और बीजेपी हुकूमतों की जानिब से मुलजिम के घर को गिराए जाने के लिए बिल्डोजर इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत करती है। खड़गे ने कहा, इंतशार खुदरती इंसाफ की जगह हरगिज नहीं ले सकता। जराइम का फैसला अदालतों में होना चाहिए, न कि रियासती हुकूमतों के ज़ेर एहतमाम।
जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की जमात एनसीपी में इत्तेहाद पर बीजेपी शदीद बरहम नजर आती है। यूपी के वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इत्तेहाद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस सरहद पार से दहशतगर्दी की भी हिमायत करेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है, आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय और मुतालिका आलात की मुमकिना गैर मुल्की फौजी फरोख्त को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की तखमीनी लागत 52.2 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी, जिसे अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मंजूरी दी है। अमरीकी दिफाई ताउन एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि कांग्रेस को इस मुमकिना फरोख्त के बारे में बता दिया गया है। इससे पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो अमरीका के दौरे पर है, जुमा की रात देर गए वाशिंगटन में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान से मुलाकात की और बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और कुछ अहम इलाकाई सलामती के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नए साल से तमाम सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल सरबराह किया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। राशन चावल की दीगर अगराज के लिए मुंतकिली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन शॉप डीलर्स को दिया इंतबाह। वजीर आला रेवंत रेड्डी की दीगर वज़रा के साथ दिल्ली में हाईकमान से मुलाकातें। रियासत के तरक्की और मुस्तकबिल के प्लान्स पर अहम मुज़ाकिरात। गवर्नर के जरिए गैर बीजेपी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश। सीपीआई खैर डॉक्टर नारायणा का मोदी हुकूमत पर इल्जाम। खवातीन के मजाली में इजाफे पर भी जाहिर की तशवीश। हैड्रा की कार्रवाइयों में दिन ब दिन तेजी। अदाकार नागार्जुना की गैर कानूनी मुल्कियत भी कर दी गई मुनहदीम। कहा, तालाबों कुंटों के करीब गैर कानूनी इमारतों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के सिवास रेड्डी की गणेश मंडपों के नुमाइंदों के साथ अहम मीटिंग। क़याम अमन व हादसा से बचाव के लिए किए सवालात। वक्फ तरमीमी बिल बीजेपी की साजिश। कौम मिल्लत को मुत्तहिद होकर साजिश को नाकाम बनाना होगा। उलमा, मशाइखीन व दानिशलान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली की हवेली को बिल्डोजर से गिराए जाने पर अवाम में बेचैनी। कांग्रेस ने कहा, मुल्जिम के घर पर बिल्डोजर चलाना इंसाफ नहीं, बर्बरियत है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर बीजेपी बरहम। कहा, क्या कांग्रेस सरहद पार से दहशतगर्दी की करेगी हिमायत। इसके साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स। फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।